پاکستان میں 1,70,00,000 سے زائد افراد گردوں کے امراض کا شکار ہیں، جن میں سے 20,000 سے زائد افراد ہر سال اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ اس صورتحال میں امریکہ سے آئے ڈاکٹر سعید اختر نے گردوں کے امراض کے حوالے سے ایک جدید ترین پاکستان کڈنی اینڈ لیور ٹرانسپلانٹ انسٹیٹیوٹ کی لاہور میں بنیاد رکھی۔ مگر ثاقب نثار نامی یہ چیف جسٹس اس نے اس ادارے اور ڈاکٹر سعید اختر کو کام نہیں کرنے دیا۔ جسٹس ثاقب نثار نے ڈاکٹر سعید اختر کو گھر پہ بلایا اور اپنے ایک ڈاکٹر بھائی کی کم تنخواہ کا رونا رویا اور کہا، آپ کیسے لاکھوں میں تنخواہ لیتے ہیں؟ عمران خان کی نئی حکومت نے ڈاکٹر سعید اختر کو PKLI چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ ڈاکٹر سعید اختر نے ہمت نہ ہاری اور اسلام آباد کے پاک فضائیہ کے اس ہسپتال میں گردوں کے امراض کے علاج کا ایک نیا ادارہ قائم کر دیا۔ تقریباً 30,000 روپے میں اس جدید ترین مشینری کی لیزر کی مدد سے گردے کی پتھری کا علاج کیا جاتا ہے۔ اس کو سیڈیشن اور پین کلر دیتے ہیں اور اس کے بعد پھر یہ جو شاک ہیڈ ہے یہ اس کی کمر سے آ کے لگ جاتا ہے، وہ اس پہ مانیٹر پہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ پتھر کہاں پہ ہے، تو اس کو فوکس کرتا ہے، تو بالکل پن پوائنٹ پروسیجر کے ساتھ یہ شوائیں یہاں سے جنریٹ کرتے ہیں، مریض یہاں پہ لیٹا ہوتا ہے، یہ اس کی کمر کے آگے لگ جاتا ہے، پھر یہ پتھر شوائیں نکلتی ہیں اور پتھر ٹوٹتا ہوا نظر آتا ہے ہمیں، پتھر ٹوٹ رہا ہے۔ یہ سہولتیں ہمارے پاس موجود ہیں جس میں کہ ہم لوگوں کو بغیر کاٹے ہوئے، کیونکہ اس سے پہلے تو سوائے یا تو اوپن کر کے سرجری کریں یا انڈوسکوپی سرجری، وہ بھی آپشن اویلیبل ہیں، ہر جگہ یہ کام نہیں کرتا، بہت بڑا پتھر ہے اس میں یہ کام نہیں کرے گا، لیکن جو آپ ایوریج پتھر ہے 7 سینٹی میٹر 1.5 سینٹی میٹر 0.5 سینٹی میٹر، یہ سب بہت افیکٹو ٹول ہے اس کے لیے، اور اس میں ہمارے لیے یہ بڑی نعمت ہے اس ہسپتال میں کہ یہ ٹیکنالوجی اویلیبل ہے۔ ہمارا اکوپمنٹ وہ ہے جو کہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کا ہے، اور مریض کو یہ جو پروسیجر ہم یہاں کرتے ہیں یہ ہمیں لوکل اینستھیزیا میں ہی بہت ساری چیزیں دیکھ لیتے ہیں جو کہ ادروائز ہمیں بے ہوش کر کے انڈر جنرل اینستھیزیا، تو اس کے لیے بہت سفسٹیکیٹڈ اکوپمنٹ ہے، اور اوبیسلی اکوپمنٹ مہنگا ہوتا ہے لیکن اس کے ورتھ ہے وہ ساری چیز استعمال کرنا مریض کی سہولت کے لیے۔ تو یہ وہ سہولتیں ہیں جو کہ 99.9% ہسپتالوں میں نہیں ہے پاکستان کے اندر۔ تو یہ اور ہارٹ ٹوٹنا نہیں ہے، اس سے پہلے ہی برین اسٹیم کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو پھر یہ چیزیں ہوتی ہیں، تو وہ برین ڈیتھ کہلاتی ہے۔ تو ویسٹ نے ایک بڑا اچھا سسٹم اسٹیبلش کر لیا ہے کہ جیسے کسی کی برین ڈیتھ ہوتی ہے اس کے پھر آرگنس کو لے کے اور پھر بہت سارے لوگوں کی 11 لوگوں کی جان بچائی جا سکتی ہے، کسی کو کڈنی، کسی کو لیور، کسی کو ہارٹ، کسی کو پینکریاس وغیرہ، دو آنکھیں وغیرہ وغیرہ۔ یہ ہے ایک باپ جس کا بچہ گردوں کے مرض میں مبتلا ہے، اور آپریشن سے پہلے بچے کو کس تکلیف سے گزرنا پڑ رہا ہے، اس کا اندازہ اس باپ کے چہرے کے تاثرات سے ہوتا ہے۔ تقریباً ابھی 3.25 سال ہو گئے بچے کو ڈائلسس پہ، اور دن ب دن پیچھے جاتا جا رہا ہے، اور ابھی اس بچے کا علاج بھی جلد شروع ہو رہا ہے۔ یہ ہیں شبیر آوان جن کا کڈنی ٹرانسپلانٹ ہوا ہے، اور ان کی بیٹی نے اپنا ایک گردہ اپنے والد کو عطیہ کیا ہے۔ 12 فروری 2021 میں میرا سیکنڈ ٹرانسپلانٹ ہوا ہے۔ پہلے ٹرانسپلانٹ نے میری مسز نے مجھے کڈنی ڈونیٹ کی ہے، اور اب میری بچی ہے جس کی عمر 20 سال ہے، باہمت۔ تو بھائی مسئلہ یہ ہے کہ یہ بڑی مشکل بیماری ہے، اس سے آپ باہمت ہو کے لڑ سکتے ہیں، اگر بزدلی میں آپ لڑیں گے تو آپ 1 مہینہ بھی نہیں نکال سکتے۔ اب میں اس وقت 25 سال عمر تھی جب میرا پہلا ٹرانسپلانٹ ہوا ہے، مطلب گردے فیل ہوئے ہیں، اس میں میں
बाहिम्मत जवान भी था, हिम्मत भी थी। अब मैं सोच रहा था 50 प्लस हो गया हूँ, मेरे में इतनी विल पावर भी नहीं है, लेकिन वो विल पावर जो थी वो मेरे दिल में डॉक्टर सईद अख्तर की वजह से फिर एक दफ़ा मैं बाहिम्मत हुआ और मैंने अपना ट्रांसप्लांट करवाया। मैं बाबा को जब लाइसिस की तकलीफ़ में देती थी तो मैं उनकी ये तकलीफ़ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, और मुझे आज फ़ख्र महसूस होता है कि मैं अपने बाबा के काम आ सकी। एक बाप ही बेटी का सबसे बड़ी ताकत होती है, और मैं इस ताकत को टूटने कैसे दे सकती थी। मैं ज़्यादा वक्त तो नहीं लूँगी आपका, मैं आज आपके सामने हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। कुछ अपनों की दुआएं थी और कुछ डॉक्टर सईद अख्तर की मेहरबानियाँ। बस इतना ही कहूँगी, किसी इंसान की जान आपकी वजह से बच सकती है तो आप इस काम में कभी भी देर ना करें। अल्लाह पाक आप सबको सेहत दे और सेहत अता करे, आमीन। अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। शुक्रिया। करनी होती है। बाकी कुछ हमारे ऐसे पेशेंट्स और कंडीशंस हैं, जैसे स्टोन फॉर्मर्स जो पेशेंट्स होते हैं ना, जिनमें हिस्ट्री होती है या फैमिली हिस्ट्री है, उनको हम ज़रूर ये एडवाइस करते हैं कि आप ज़रूर इतना पानी लें कि आप में डिहाइड्रेशन नहीं होनी चाहिए। और स्पेशली जैसे आपकी गर्मियाँ आती हैं जिनमें बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही होती है, उस दौरान हम उनको ज़रूर एडवाइस करते हैं। बल्कि कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको हम इतना एडवाइस करते हैं कि आप इस तरह पानी लें कि आपको एक आध बार रात को भी उठना पड़े। ये स्टोन फॉर्मर्स के लिए है, नॉट आम आदमियों के लिए नहीं। आप आम लोग जो हैं उनको तो जो 2.5 लीटर इतना पानी लेना चाहिए, और जितनी प्यास होती है उतनी लेनी चाहिए। बाकी जो जनरल एडवाइस में आप कह सकते हैं कि अननेसेसरी मेडिकेशन, पेन किलर अवॉइड करें क्योंकि जब आप पेन किलर ले रहे होते हैं ना, एनसेड्स खास तौर पर, पैनाडोल वगैरह तो सेफ़ होते हैं, बट अदरवाइज़ जो एक्सेसिव पेन किलर का यूज़ है वो आपके किडनीज़ को ख़राब कर सकते हैं। क्या है प्रिवेंशन? आप कोई दवाइयाँ ले लें, मिनिमल कॉस्ट है। जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि डायलिसिस की एक महीने की कॉस्ट तकरीबन 20 से 25 हज़ार पड़ जाती है, विच मीन्स के साल के 2.5-3 लाख रुपए हो जाते हैं, मे बी इवन मोर देन दैट। फिर उसके बाद उसकी दवाइयाँ, एपोकाइन, ये वो। ट्रांसप्लांट की तकरीबन 15-16 लाख कॉस्ट पड़ती है, लेकिन साथ में उसके फिर लाइफ लॉन्ग दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं जिनकी अपनी कॉस्ट है, लाइफ लॉन्ग ब्लड टेस्ट कराने पड़ते हैं। लेकिन जो ट्रांसप्लांट का एडवांटेज है कि वो जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है ना ट्रांसप्लांट के बाद, वो इतनी बेहतर होती है कि ही इज़ ऑलमोस्ट लाइक अ नॉर्मल पर्सन। वो अपनी खुद रोज़ी कमा सकता है, खुद जाके मेहनत मजदूरी कर सकता है, काम कर सकता है, चूँकि वो एक डायलिसिस पे वो बाउंड है कि किसी सेंटर के साथ उसको कनेक्टेड है सर्टन आवर्स के मैकेनिज्म है। चूँकि हमें भी ये लोग ज़कात और खैरात के पैसे देते हैं, तो हम अमीन और हम उसका ट्रस्ट हैं, किसी की अमानत हमारे पास है, तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी फ़ीस नहीं चार्ज करते, और जो हमारी अपनी प्रोफेशनल कैपेबिलिटीज़ हैं वो अल्लाह की खातिर हम लगाते हैं। तो उसमें फिर एक क्राइटेरिया है उसको इस्टेब्लिश करते हैं, उसको जाके देखते हैं, उसके बाद उसके हिसाब से हम ये करते हैं कि 3 कैटेगरीज़ में लोगों को डिवाइड किया हुआ है। एक वो जिससे हम कुछ भी चार्ज नहीं करते, एक वो जिससे हम जो वो पे कर सकते हैं वो चार्ज करते हैं, और एक वो है कि एक जो उसकी कॉस्ट है, क्योंकि इसमें बड़ी कीमती दवाइयाँ, बड़ी कीमती सूचर्स और बहुत महंगी चीज़ें लगती हैं, तो उसकी एक सर्टन कॉस्ट है, तो जो कॉस्ट पे कर सकता है वो कॉस्ट पे करता है। जस्ट सर वन लास्ट क्वेश्चन माजरत के साथ, बहुत से ऐसे पाकिस्तानी हैं, बल्कि सियासी लीडरान भी हैं, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में ये ऐलान कर दिया था कि उनके जो अज़ा हैं वो डोनेट कर रहे हैं, जिनमें अगर आपको याद हो सदर आसिफ अली ज़रदारी ने भी ये ऐलान कर रखा है। तो क्या आपके इदारे के पास या पाकिस्तान में कोई ऐसा इदारा है कि जिसके पास उन अफराद के नामों की फहरिस्त है या डाटा है कि जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में आज़ाद डोनेट करने का ऐलान कर रखा है, और क्या आपका उनसे रब्ता है, और कितना मौसर है वो ये निज़ाम और ये डाटा बैंक जो ऑर्गन डोनेट करने वालों से मुतालिक है? तो इसका जवाब, जिस तकरीब में प्रेसिडेंट जरदारी साहब ने ये अनाउंस किया था, वो तकरीब थी जिसमें कि हमारे जो मैंने अपना हीरो दिखाया उसको, उसके पेरेंट को, उसकी फैमिली को उन्होंने ऑनर किया था। अच्छा, हैविंग सेड दैट, उसके लिए जो दूसरा जवाब ये है कि अदारा है, तो जवाब ये है कि यस, अदारा बन चुका है, उसका नाम है ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन अथॉरिटी। लेकिन उसको कम्प्लीटली इग्नोर्ड अदारा है, कोई इसमें बहुत थोड़ा काम हो रहा है। तो अभी जो नए उसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर साहब आए हैं, वो कोई अच्छे थोड़े से डायनामिक आदमी हैं, तो वी आर हेल्पिंग हिम। लेकिन टू आंसर योर क्वेश्चन, और ये वो चीज़ है जो जिसकी वजह से मेरा दिल रोता है कि जब ये अमेरिका में मैं कर सकता हूँ और इंग्लैंड में कर सकता हूँ, तो पाकिस्तान में क्यों नहीं कर सकता। वहाँ पे सिस्टम ये होता है कि एनी पेशेंट हु गोज़ ऑन डायलिसिस वो एक डेटाबेस में आ जाता है।
वो डेटाबेस नेशनली शेयर्ड होता है। न सिर्फ वो डेटाबेस शेयर्ड होता है, उसका पेशेंट का ब्लड ग्रुप क्या है, उसके घर में कितने लोग हैं वगैरह वगैरह, पूरी डिटेल आ जाती है, मेडिकल हिस्ट्री क्या है। फिर एक उससे मैचिंग गुर्दा फ़र्ज़ किया, एक कैलिफोर्निया में है, दूसरा बॉस्टन में, 4000 मील का डिस्टेंस है, लेकिन उनका बेस्ट मैच है, एक सेंट्रल कंप्यूटर वो निकालता है, मैच करता है और वो कहता है कि नहीं ये किडनी वहाँ जाएगी। तो उसमें कोई पॉलिटिकल इन्फॉर्मेशन, प्योर मेडिकल डिसीजन, और वो किडनी जो है फिर उसी को जाके लगती है जहाँ जिसके लिए कि वो बेस्ट सूटेबल है। तो वो सिस्टम हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैंने जैसे पहले कहा ना, ये स्टेट स्पॉन्सरशिप के बगैर ये काम नहीं हो सकते। somebody has to take the lead, वो लैकिंग है, लेकिन हमारा स्ट्रगल कंटिन्यू करें। So my question is regarding a normal healthy body has 2 kidneys, sir, which are functional. So if anyone has to go for a transplant of a single kidney, sir, what changes that brings in his lifestyle, sir? 25,000 में एक बच्चा एक गुर्दे के साथ पैदा होता है, वो एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजारता है और नॉर्मल मौत मरता है। तो एक गुर्दे के साथ आप बिल्कुल एक परफेक्टली हेल्दी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। अच्छा, फिर रियलिटी ऑफ लाइफ ये है कि बहुत लोगों को गुर्दे का कैंसर हो जाता है। एक गुर्दे में कैंसर था, वो निकाल दिया हमने, तो अब एक गुर्दे ही बचा, तो उसी गुर्दे पे उसने ज़िंदगी गुजारनी है। मगर ये एक गुर्दे पे ज़िंदगी गुजारने के अपने मसाइल भी हैं। मिसाल के तौर पे जो एक गुर्दा बचा हुआ है, उसमें उसको कोई पथरी हो गई, उसमें उसको कोई कैंसर हो गया, उसको डोनर को, ये रियल चीज़ें हैं। तो उसका जो अच्छी बात है गुर्दे की डोनेशन की, कि जैसे एक आम आदमी आम हालात में कभी भी अपना अल्ट्रासाउंड नहीं कराता, वैसा ये बच्ची कायनात है। अब कोई तरीका नहीं, कोई रीज़न नहीं है कि इसने अपना को भी आके, क्योंकि एक हेल्दी बच्ची है तो कोई रीज़न नहीं थी। लेकिन एक दफ़ा शी हैज़ कम अंडर द मेडिकल रेडार। अब ये हम कॉन्स्टेंटली, मैं और डॉक्टर साहिब साहब इसको रेस्ट ऑफ आवर लाइफ के लिए फॉलो करेंगे। हर साल इसका अल्ट्रासाउंड होगा, हर साल इसका यूरिन आरी होगा, हर साल इसकी क्रेटिन होगी, ये देखने के लिए कि खुदा न खास्ता उस गुर्दे में, तो अब ये रेडार के नीचे आ गई। तो जितने भी लोग सिंगल किडनी के हो जाते हैं, हमारी जिम्मेदारी, इसलिए मैं कहता हूँ कि ट्रांसप्लांट की जो सर्जन की जो लाइफ है, ये एक लाइफ लॉन्ग रिलेशनशिप बिल्डिंग है विद द पेशेंट। वो हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाते हैं एक तरह से, और हमें उनकी पूरी ज़िंदगी फॉलो करना पड़ता है। और हम इसीलिए पोस्ट ट्रांसप्लांट हम अपने पेशेंट से कोई चार्ज भी नहीं करते कि कहीं ये डिटरेंस के ये चार्ज करते हैं तो वो आए ना दिखाने के लिए। और सिर्फ इसी वजह से रखा है हमने कि वो आए और आके दिखाता रहे कि 25 साल पहले उस औरत ने गुर्दा दिया था, अब वो बिल्कुल हेल्दी है। और मेरे ख्याल है उनकी वाइफ की जो हेल्थ और स्ट्रेंथ थी, जिसने कि आवान साहब को स्ट्रेंथ दी कि ये जाके सेकंड ट्रांसप्लांट करें, और बच्ची में वो जज्बा और वगैरह आपने खुद देख लिया। तो वो मतलब, और आप यकीन करें कि मेरे पास ऐसा भी होता है कि पेशेंट्स के फैमिली के मेंबर्स लड़ते हैं कि नहीं मैंने देना है, वो कहते हैं नहीं मैंने देना है, और 5-6 भाई हैं, वो बहनें, उनमें लड़ाई हो रही है कि नहीं हमारा गुर्दा है। मैं कहता हूँ यार फैसला मैंने करना है, तो साइंटिफिक बेस पे फैसला करना है, लड़ाई नहीं करो उसके लिए। दूसरी तरफ लोग डरते भी हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि जब तक ये कल्चर है हमारा जो गुर्दा बेचने वाला, ये ख़त्म नहीं होगा ना, हम एथिकल ट्रांसप्लांटेशन नहीं शुरू कर सकते पाकिस्तान। इट हैज़ टू स्टॉप। अमेरिका में 5 साल की कैद और $50,000 का जुर्माना है जिस तरह की चीज़ करते हैं। हमारे यहाँ बस पीपल विल गेट अवे बिकॉज कानून का सिस्टम है। तो टू आंसर योर क्वेश्चन, डोनेशन इज़ वेरी सेफ, इट इज़ डन अकॉर्डिंग टू अ साइंटिफिक प्रिंसिपल एंड साइंटिफिक क्राइटेरिया। फिर इवन कितनी भी साइंस लगा दें, वो पेशेंट को कल को हाइपरटेंशन डेवलप हो सकती है, कुछ और डेवलप हो सकता है, तो उनके ऊपर नज़र रखना बड़ा ज़रूरी है। अभी जो रिसेंट रिसर्च आई है उसमें वो कहते हैं कि जो कोविड-19 से जिन लोगों की डेथ्स होती हैं, उनमें सबसे ज़्यादा हाई रिस्क वाले वो लोग हैं जिनको किडनी डिजीज, मतलब हत्ता के जिनके बीमार फेफड़े हैं या कोई और जिस्म का ऑर्गन पहले से खराब है, अगर उनको कोविड-19 होता है तो जो ज़्यादा मरने का चांस है या कॉम्प्लिकेट होने का चांस है तो वो किडनी डिजीज की वजह। ये बिल्कुल रिसेंट रिसर्च है। तो हमें इन चीज़ों के बारे में बहुत एहतियात की जरूरत है।
पाकिस्तान के आला इदारों में प्रोफेसर सईद अख्तर जैसे डॉक्टरों की पज़ीराई इस बात का सबूत है कि साकिब निसार जैसे जजों के फैसले मुल्क व कौम के मफाद में कभी नहीं थे। साबिक सदर आसिफ जरदारी ने अच्छे वक्तों में अपने आज़ा अतिया करके एक अच्छी मिसाल कायम की है, मगर क्या हमारी दूसरी कौमी क़यादत भी इसकी तकलीद करेगी? क्या हमारे सियासतदान अपनी ज़ाती मिसाल सामने रखकर आवाम को इसी तरह आज़ा अतिया करने की तरगीब देंगे?